Hello friends, how are you? Welcome to Tripanasi Center. Let's see what is our topic today. Minerals. The minerals is the most important in our body. There is a minerals are macronutrient. There is a very macronutrient required to various among from a proper functionings of normal growth and keeping of good health of our body. And there are inorganic element occurring in form of there are salt, calcium, potassium, sodium, phosphorus, iron, etc. There is the most important here the calcium, potassium, sodium, and phosphorus, iron, etc. They do not supply energy to our body, but stimulate their protection against disease and also have a role in the body function. That is the most important in minerals in our body. The here show the table. There are minerals required in the large amount and requires a trace amount. There is the most important here. They require a large amount here the calcium, phosphorus, sodium, potassium, and sulfur, chlorides, and magnesium. And the required is a trace amounts here iron, iodine, zinc, chromiums, and cobalt, copper, fluorides, manganese, and the poloniums, and siliconium, and bronze. There is the most important here. The next here is a function. The function is a mineralizer performed to following functions. Initially, there is the development of the bone and teeth is the calcium and phosphorus. And they regulate the fluid balance and acid alkalinity of the body fluid is sodium, potassium, and chloride. The iron is a major component of the hemoglobin which helps to transport and release of oxygen, and the iodine is required for the synthesis of thyroid hormone is the thyroines which regulate the rate of oxidation energy source within the cell. There is a most important function here, and zinc, copper, magnesium regulate a host of vital reaction in our body. So here is a mineral required for our body. There is a source and function here. There is the most important the minerals, function, food source, and deficiency, disease, and symptom. The calcium is a formation of bone and the teeth, necessary for the nerve, teeth, and the muscles. There is a function and the food source here is a milk and milk product, fish, meat, beans, green leafless vegetables, broccolis, tubicose, and cereals. There's the most important food source here, and deficiency is here rictus, osteomalacia, loss of teeth. There is a deficiency of calcium, and the symptom is a softening of the bone. There is a most important symptom here, and definitely of pain in the bone. The regulatory of pain is the anemia, and enemies is the next. The next here is a iron. The iron is a formation of the hemoglobin, act a carrier of oxygen. There is a present here. The source is a liver, green leaf, vegetables, egg, spinach, groundnut, carrots, and jaggery. There is the most important source, but disease is as a anemia. Anemia is a major disease for the iron, and here loss of weight and the appearance of tiredness and the loss of appetite. There is the most important here, and the next is the phosphorus. The phosphorus here a formation on bones on the teeth. There is here, but there is a found in the source of mirror is cereals, green leaves, vegetable, nut, bajra, and the meat. There is a most important phosphorus source, and that disease is causing here rictus and osteomalacia. There is a most important disease for the causing for the is a less on the phosphorus, and there is a, also here there is softening of the bone and bone legs, vision of the chest. There is a rectus and disease here. The next is the iodine. Iodine is the most important for here. There is a metabolic control of hormone, thyroid control growth and mental ability. There is the most important here. Iodine here is a control for the mental ability and the control of the growth. There is a metabolic control of hormone thyroxine. There is the source of iodine salt and seafood, fish, green leaf vegetable. There is a source iodine is the most important here. You take the daily life there is iodine in the salt form, and there is a disease of the Gaucher's. The Gaucher's is a disease of here. There is a enlargement of the thyroid gland. There is a Gaucher's here, enlargements of thyroid gland, and the retards of the physical and mental growth here. And the next here is sodium and potassium. The sodium and potassium here is the maintenance of the normal water balance in the body. That is the most important and associated with their conduction of the nerve impulse. There is source of here is a common salt and meat, potatoes and fish, fruits, kales,
kernels, eggs, spinach, pulses, potatoes, and yogurt. There is the most important source here. So in there, there is high blood pressure. There is a sodium and potassium not taken again. There is a high blood pressure, edema, asthmatics, pressure of diabetes. There is the sodium calcium diseases, and also is a sort of malnutrition. There is a malnutrition in children, the high blood pressure in a big person, and fatigue of the loss of the mobility. There is a main symptom here. Here they show the deficiency of the salt that attain on the Gottries. The Gottries disease in this diagram is important for the sodium, iron, salt. दोस्तों यहाँ पर जो है हम बात करने जा रहे हैं खनिज। देखिए खनिज जो कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसके लिए जो है आपको भी जागरूक होना अत्यंत महत्वपूर्ण है, तभी जो है बहुत सी बीमारी से आप बच भी सकते हो। तो खनिज के विषय में अगर बात किया जाए तो ये बहुत ही सूक्ष्म पोषक होता है, यानी इसको हमारे शरीर में कम मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये कई मायने में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और शरीर के लिए अत्यंत फायदेमंद है, जिसके हमारे शरीर की वृद्धि के लिए व स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अलग अलग मात्राओं में आवश्यकता होती है। ये कार्बनिक पदार्थ होता है जो कि लवण के रूप में पाए जाते हैं। दोस्तों ये कार्बनिक पदार्थ होता है यानी अकार्बनिक पदार्थ, यानी इनऑर्गेनिक फॉर्म में ये होता है और कहते हैं ये लवण के रूप में पाया जाता है। जैसे कि आपको पता ही है कि कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और लौह तत्व जो होती है इसके मेन अवयव होते हैं, यानी कंपोनेंट होते हैं कैल्शियम, सोडियम, फास्फोरस और लौह तत्व जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं जो खनिज में पाए जाते हैं। कहते हैं ये हमारे शरीर की ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन रोगों के विरुद्ध रक्षा करने के लिए ये बहुत ही आवश्यक होते हैं। शारीरिक क्रियाओं में भी इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इसलिए खनिज को लेना हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों खनिज से आपको एनर्जी तो नहीं मिलेगी, लेकिन ये जो है कई प्रकार की बीमारियों से लड़ने में आपके हेल्प करेगा बॉडी को, इसलिए खनिज को जो है उचित मात्रा में प्रतिदिन लेना प्रत्येक नागरिकों को, प्रत्येक व्यक्तियों को अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। अगर यहाँ पर बात देखा जाए तो खनिज के बारे में, तो खनिज जो होती है बड़े मात्रा में जब आवश्यकता होती है कैल्शियम की, फास्फोरस की, सोडियम की, पोटाशियम की और सल्फर अनक्लोराइड, मैग्नीशियम की, ये हमें बहुत अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए लोहा, आयोडीन, जस्ता, क्रोमियम, कोबलेट, कॉपर फ्लोराइड, मैग्नीशियम और मैंगनीज, सेलेनियम, देखिए ये जो होती है हमें जो है लेस अमाउंट में आवश्यकता होती है, यानी इसको सूक्ष्म अमाउंट में हमें ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है खनिज। तो इसके विषय में जो है आगे हम देखते हैं कि इसका फंक्शन यानी प्रकार्य क्या है। अगर हम कार्य के विषय में अगर चर्चा करें तो आपको पता है कि इसका जो है कई इंपॉर्टेंट कार्य भी होता है, ठीक है। अस्थियों एवं दांतों के विकास के लिए अनिवार्य उदाहरण है कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा की आवश्यकता चाहिए जो खनिज से ही हमें प्राप्त होती है। अगर तरल संतुलन नियमन, शरीर के तरलों के अम्लता और क्षारता का जो है नियमन, जैसे सोडियम और पोटाशियम क्लोराइड देखें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कहते हैं लोह हीमोग्लोबिन का मुख्य अवयव होता है जो ऑक्सीजन के परिवहन एवं मुक्त होने में सहायक सिद्ध भी होता है। यानी लोह जो होता है दोस्तों हीमोग्लोबिन, आपको पता ही है कि जो हमारा रक्त होता है, रेड होता है, वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है और हीमोग्लोबिन जो होती है उसमें लोह तत्व पाया जाता है। तभी आप देखते हो कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको डिस्पेंसरी में जो है आयरन की गोलियां दी जाती है, या जिनको ब्लड कम होता है इनको आयोडीन की गोलियां दी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ रखता है। अगर देखा जाए सोडियम की आवश्यकता, तो ये सोडियम जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोडियम की वजह से क्या होता है थायराइड एवं थायरॉक्सिन सेंसेशन जो है पड़ती है, जो कि कोशिकाओं के अंदर ऑक्सीजन दर को नियमित करती है। अगर मान लीजिए आयोडीन नहीं लेते हो तो इसमें थायराइड जो है थायरॉक्सिन सेंसेशन नहीं होगी और जिसकी वजह से जो है किसी के भी गले जो होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, जिसको गॉटरी नाम की बीमारी से ग्रसित होता हुआ आप देख सकते हो। उसके पश्चात जस, तांबा और मैग्नीशियम हमारे शरीर की मुख्य क्रियाओं का नियमन करते हैं। कहते हैं दोस्तों जस्ता और तांबा और मैग्नीशियम जो होती है ये अत्यंत महत्वपूर्ण होती है और ये जो होता है हमें शरीर जो है बीमारियों से लड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। आगे जो दोस्तों हमारा एक टेबल है जिसमें है शरीर के लिए आवश्यक खनिज तत्व और स्रोत और कार्य। देखिए यहाँ पर टेबल से आप जो हो बिल्कुल ही समझ में आ जाएगा कि कौन तत्व का क्या हमारे शरीर में कार्य है और इनका क्या अभाव से कौन सी बीमारी होगी और इस बीमारी का लक्षण क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो हमारे समक्ष यही आता है कैल्शियम। देखिए कैल्शियम जो होता है हड्डियों तथा दांतों का बना
ठीक है, तंत्रिका और दांतों के पेशियों के लिए आवश्यक होता है। ये कार्य के रूप में होता है। और इससे जो है आहार किस किस रूप में लिया जा सकता है, तो दूध तथा दूध के उत्पाद, मछली, मांस, सेम, हरी सब्जियां, ब्रोकली, टेपियोको, अनाज, इस सारे में जो है ये जो है कैल्शियम उचित मात्रा में विद्यमान होता है। अगर देखा जाए अगला अभाव रोग, तो इसके से आपको पता है कि रिक्टेस नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके विषय में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। और इसमें जो है रोग लक्षण, हड्डियों का नरम पड़ जाना और विकृतियां, हड्डियों के दांत और दांतों के जो है इनमेल की हानियाँ। तो ये जो इनेमल होता है वो भी बहुत खतरनाक होता है, इससे ब्लड दांतों में आने लग जाता है। और सबसे बड़ा बीमारी जो कैल्शियम के न होने की वजह से होता है वो तो आपको पता ही है कि उसमें जो है हड्डियों का नरम पड़ जाना। तो इसकी वजह से जो है हड्डियाँ बार बार फ्रैक्चर होती रहती है, यानी टूटती रहती है, तो ज्वाइंट होना भी उसके लिए संभव नहीं रहता है। अगर अगला देखा जाए लोह तत्व, तो लोह तो मैंने पहले ही आपको बता चुका हूँ जो कि हीमोग्लोबिन से संबंधित होता है। तो इसलिए जो है हीमोग्लोबिन का बनना ऑक्सीजन के वाहक के रूप में कार्य करता है। यानी आयरन जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके जो ब्लड होते हैं वो हीमोग्लोबिन से ही बने होते हैं, और इसका रेड कलर इसलिए होता है क्योंकि हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट की वजह से, और ये आयरन के फॉर्म में होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ रहता है। अगर आहार स्रोत के रूप में देखें तो ये आपको जो है यकृत यानी लीवर से, हरी पत्तेदार सब्जियां से, अंडा, पालक, मूंगफली, अनाज और गुड़ से अधिक मात्रा में जो है आपको आयरन मिल सकता है। तभी देखते हैं ना, गुड़ खाने के लिए व्यक्तियों को प्रोत्साहित किया जाता है, क्योंकि गुड़ जो होती है डायरेक्ट बनती है और इसमें प्रचुर मात्रा में लोह तत्व पाया जाता है, जिससे कि ब्लड बनता काफ़ी है। देखिए डॉक्टर काफ़ी सलाह देते हैं जिनके ब्लड कम होते हैं बॉडी में, तो वो अगर गुड़ खाते हैं तो उनमें कई मात्रा में ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है। अगर देखा जाए इसका रोग, तो इसमें जो है रक्तता यानी एनीमिया नाम की बीमारी, एनीमिया का मतलब ये होता है शरीर में ब्लड की मात्रा कम होना, ठीक है। और इसके रोग के लक्षण जो होंगे, वजन घट जाता है, चेहरा पीला पड़ जाता है और हल्की थका जाना और भूख न लगना, इसके मुख्य जो है लक्षण देखने को आपको मिल जाएगा। अगर देखा जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस भी जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हमारे शरीर के तत्व में से आता है। इसे जो है हड्डी और दांतों को बनाया जाता है, तो फास्फोरस के ही रहता है इनका योगदान। कहते हैं अगर ये फास्फोरस जो है आपको बहुत आसानी से प्राप्त हो सकती है, जैसे दूध, अनाज, हरी पत्तेदार सब्जियां, गिरीदार फल, बाजरा और मांस, इसमें जो है फास्फोरस उचित मात्रा में विद्यमान होती है। अगर देखा जाए अगर आप फास्फोरस नहीं लेते हो तो इसके जिससे जो है बीमारी होगा वो रिक्टेस हो जाएगा, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाएगा। तो ये दोनों बीमारी जो होगा काफ़ी आपको परेशान कर सकता है। और इस बीमारियां में क्या होती है, हड्डियों का नरम पड़ जाना इसका सबसे पहला लक्षण दिखेगा। टांगों में मुराब आ जाना और कबूतर की तरह बख्श सीना हो जाता है। तो ये एक बीमारी के पहले ही हमने देख लिया है डायग्राम में, ठीक है। तो यहाँ अगला जो है हमारा आयोडीन है। आयोडीन तो आपको पता है कि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए जो गर्भवती महिलाएं होती हैं चाहे बच्चे होते हैं उनको आयोडीन की मात्रा देने की सलाह दी जाती है। देखा जाए थायरॉक्सिन हार्मोन का अपचय, नियंत्रण, वृद्धि तथा मानसिक क्षमता का नियंत्रण भी करता है। आयोडीन युक्त नमक समुद्री आहार, मछली, हरे पत्तेदार सब्जियां में उचित मात्रा में ये विद्यमान होती है। अगर देखा जाए गलगंड यानी घेंघा की बीमारी में भी ये जो है यूज़ किया जाता है। आयोडीन की वजह से मेन बीमारी जो होती है घेंघा हो जाती है, जो गले में सूजन आ जाती है। और दूसरा जो होता है बच्चे मंदबुद्धि हो जाते हैं। आपको पता ही होगा कि बहुत से बच्चे मंदबुद्धि होते हैं, तो इसका कारण भी यही होता है कि उनके जो होती है आयोडीन की नमक जो है उसकी मदर ने प्रेगनेंसी के दौरान नहीं खाया था, या उसके आहार में जो है आयोडीन जो है सम्मिलित नहीं किया था। कहते हैं अगर देखा जाए इसके लक्षण, तो अवयव थायराइड ग्रंथि का फूल जाना और शरीर तथा मानसिक वृद्धि में हर्ष हो जाता है, यानी इसके जो वृद्धि है काम करना थोड़ा कम करेगा। यहाँ पर एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा जिसमें गलन रोग से पीड़ित रोगी को दिखाया गया है। इसमें जनरली अगर ध्यान से आप देखोगे तो इसके गला में जो है सूजन हो चुकी है। तो ये इसलिए हुआ क्योंकि इसने आयोडीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में नहीं लिया, जिसकी वजह से जो है पहले सुंदरता की वजह से आयोडीन नहीं लेते थे, अब जो है इनको कुरूप बन गए हैं तो इनको आयोडीन लेने की आवश्यकता बन गई है। तभी कहते हैं ना कि हर तत्व जो है हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इसमें सोचने वाली विचार नहीं होती है दोस्तों, आपको हर एक चीज़ को जो है उचित मात्रा में खाने की आवश्यकता है और आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने की ज़रूरत है। अगला जो है दोस्तों हमारा सोडियम एवं पोटाशियम। देखिए सोडियम और पोटाशियम का भी हमारे शरीर में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कहते हैं शरीर में पानी की मात्रा
असामान्य मात्रा का रखरखाव करना और तंत्रिका आवेग को संचरण में सहायक होता है। यानी नर्व सिस्टम को चलाने के लिए सोडियम और पोटेशियम जो होता है अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव के रूप में रखा जाता है। कहते हैं इसका अगर देखा जाए तो ये कहीं भी प्राप्त हो जाता है बहुत आसानी से, जैसे सामान्य नमक, मांस, मुर्गी, मछली, फल, अनाज, अंडे, पालक, दालें, आलू, दही। ये तो आप दिन प्रतिदिन यूज़ भी करते हो और नकारते भी हो भोजन को। तो इसमें जो है आपको सोडियम और पोटासियम उचित मात्रा में उपलब्ध हो जाता है। अगर देखा जाए तो इसके बीमारी जो होंगे उच्च रक्तदाब हो जाते हैं, यानी ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, सूजन हो जाएगी, प्रसरण दबाव में गड़बड़ी आ जाएगी। तो इस तरह से जो है आपको बीमारी हो सकता है। और इस गंभीर बीमारियों के लक्षण जो होगा, गंभीर कुपोषण होगा, यानी जो है माल न्यूट्रिशन का जो है शिकार हो जाएगा, उच्च रक्तदाब हो जाएगा, थकावट हो रहेगी और भूख न लगना, उल्टी हमेशा होने के चांसेस बने रहना। तो ये जो है सोडियम और पोटासियम की कमी की वजह से ऐसी बीमारी जो है उत्पन्न हो जाती है। The one next topic is water. The water mean to save the water. Water is a life. The water is an important concept about the diet. There is 75% of infant body and 60% of the adult body is nothing about but water. There is the most important here. The 60% of adult bodies are nothing but water, and the various function of water is the flowing. There is the most important function here. Naturally, from the transport of digestion of the food material. There is the most important function here. The transport and digestion of food material and excrete to the waste material in our body. There is important function here. And maintain the body temperature for the water. The water is a maintainer of body temperature and the act as a solvent various reaction in our body. There is a water is the most important function here. Here is the source of water. The water is replaced by there is a drinking of plain water or the tea, coffee, milk and the fruit juice. The eating fruit, a vegetable and fish and some amount of water come in by product of oxidation of glucose in body. That is the source of important here. यहाँ पर जो अगला टॉपिक है दोस्तों हमारा है जल। देखिए जल को कहते हैं जीवन है, जल ही जीवन है। जल के बिना जो है इंसान अधूरा है, क्योंकि आपको पता है जल हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण अवयव है। शिशु के शरीर का जो है 75% भाग और व्यास के जो है 60% भाग जल से ही निर्मित होते हैं। अगर देखा जाए तो शिशु के शरीर जो होता है 75% होता है बना हुआ और व्यास के जो शरीर होता है 60% भाग जो है जल से ही निर्मित होती है। यह जल के जो है विभिन्न कार्य होते हैं जो आपके समक्ष है। खाद्य पदार्थ के परिवहन एवं पाचन के लिए जल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहते हैं अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, यानी मल मूत्र त्यागने के लिए जो है अपशिष्ट पदार्थों को बॉडी से बाहर करने के लिए जो है जल अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। शारीरिक तापमान बनाने निमित्त करने के लिए जल का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है और विभिन्न जो है शारीरिक क्रियाओं में विलायक के रूप में ये कार्य करता है। तो जल जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे शरीर के लिए। ये कई कार्यों में जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है, चाहे खाद्य पदार्थों की परिवहन हो, चाहे अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन हो, चाहे तापमान के शरीर को बनाए रखने के लिए जरूरी हो या शारीरिक क्रियाकलाप विलायक के रूप में हो। इसमें जल जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर आप देखा जाए जल के स्रोत, तो देखिए जल का स्रोत जो है तो होता है सामान्य पानी या चाय, कॉफ़ी, दूध या फलों से रसों द्वारा भी आपको जल प्राप्त हो जाएगी। फल, सब्जियां या मछलियां आदि द्वारा भी जल जो है आपको प्राप्त हो जाएगा। शरीर में सुक्रोज को जो है ऑक्सीकरण के उत्पाद यानी उपरस उत्पाद के रूप में कुल जल बाहर निकालना होता है, तो इसके थ्रू भी आपको जल प्राप्त हो सकता है। आगे है हमारा रफ फेज यानी रुक्षांश। तो देखते हैं क्या है ये। Here the rough phase is there fiber present in the some food item like a fruit, vegetables. So the rough phase is not a food. The rough phase is not a food. It's a form of important part of a diet. The rough phase consists of mainly of cellulose. The rough phase is mainly of cellulose. The rough phase is not about things of food. There is not about giving the lot of energy. There is only for our diet of part. There is the most important here, the function here. It is a help to the body to the movement. There is a reference. The most important is a level of movement, and it's a clean over digestive tract and
protect the body from a digestive element. There is a most important here of roughage. The roughage is a function help to the wall of movement. There is a most important function here. It is a clean over digestive tract and protect the body from a digestive element. There is a most important is a roughage. Here is a prevent of the constipations in the daily to daily life. There is a most important roughage is role here is the prevent of the constipations and constipations here. It is a help to the returning water in a body. There is a most important function. There is a help to returning water in our body, and it's a help to the maintenance optimum level of blood sugar and cholesterol. There is a most important factor here. There is the level of blood sugar and cholesterol maintain of the roughage. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा है रुक्षांश, देखिए रुक्षांश के विषय में बात करना वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रुक्षांश की वजह से जो है आप कई तरह की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हो, अभी बहुत ही आसान तरीके से। सोच रहे हो कि रुक्षांश होती क्या है, तो रफेज के नाम से जाना जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं और इसको रुक्षांश कहते हैं। रुक्षांश का मतलब होता है, देखिए दोस्तों ये कोई फूड नहीं होता है, और रुक्षांश जो होता है हमारे बॉडी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं रुक्षांश कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फलों वनस्पतियों में विद्यमान रेशेदार भाग को कहते हैं। मान लीजिए अगर आप सेब खाते हो तो आप सोचते हो कि सेब में रफेज क्या होगा। दोस्तों रफेज वही होगा जिसको आप छील के बाहर फेंक देते हो, यानी उनका छिलका। देखिए छिलका जो होती है वो रफेज के रूप में होती है, रुक्षांश के रूप में होती है, लेकिन आप लोग जो क्या करते हो छिलके तो ऊपर से निकाल के फेंक देते हो, लेकिन वही रफेज जो होता है आपके बॉडी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जैसे आप कनक पिसवाने जाते हो, गेहूं पिसवाने जाते हो, तो उसमें से क्या करते हो, उसमें से जो उसके भूसे होते हैं उसको निकलवा देते हो। आपको शायद नॉलेज नहीं है कि उस भूसे में जो है कई इंपॉर्टेंट तत्व होता है जिसको रुक्षांश के नाम से जाना जाता है। तो ये रुक्षांश जो होती है आपको पेट साफ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए आज के समय में जो है लोग बड़े बड़े सोच विचार वाले हैं, आज छिला हुआ छिलका ही चाहिए, तो जितने भी साग सब्जियां होते हैं उनके छिलके तक उतार दिया जाता है। तो इससे क्या होता है हमारे बॉडी में उचित मात्रा में रुक्षांश प्राप्त नहीं होता है और हम कब्ज के शिकायत से ग्रसित होते हैं। और आए दिन जो है हमें डॉक्टर के पास जाके डॉक्टर जो है आपको एक चूरन का डब्बा पकड़ा देता है, और आप आए दिन जो है चूरन अपने मुंह में डालते रहते हो और अपने कब्ज की शिकायत को दूर करते रहते हो। तो ऐसा अगर नहीं चाहते हो तो अपने जो है आहार श्रृंखला में आप रफेज को भी शामिल करो। रफेज कोई दूर की वस्तु नहीं है, कोई कहीं दूर से लाने की जरूरत नहीं है, ना कोई मेडिसिन है। आप जो भोज्य पदार्थ खाते हो उसमें छिलके भी होते हैं, चाहे गेहूं लाते हो तो उनमें भी होते हैं, तो उसके विषय में हम बात करेंगे। कहते हैं रुक्षांश कुछ खाद्य पदार्थ जैसे फलों और वनस्पति में विद्यमान रेशेदार भागों को कहते हैं। ठीक है, तो रेशेदार भाग होती है ये यद्यपि जो होती है रुक्षांश आहार नहीं है, फिर भी हमारे शरीर भोजन का जो है मुख्य भाग होता है। रुक्षांश मुख्यतः जो है सेलुलोज पाया जाता है। अगर रुक्षांश की बात किया जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट शब्दों में यही कहा जा सकता है कि अगर आप दिन प्रतिदिन सलाद खाते हो तो सलाद जो होता है कई मानने में रुक्षांशों का काम करता है, यानी सलाद जो होती है आपको पेट साफ करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव में से माना जा सकता है। अगर देखा जाए प्रकार्य, यानी जो है इसका सबसे पहला कार्य तो यही होती है कि मल त्यागने में सहायता प्रदान करता है। जो सुबह सुबह लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है तो उसमें अगर रफेज खाते हो यानी जो है रुक्षांश खाते हो तो आपका जो है मल मूत्र आसानी से आ जाएगी और आपको जो है कई तरह की बीमारी से भी आप बच जाओगे। कहते हैं ये पाचन क्षेत्र को साफ करता है और पाचन संबंधी रोगों से भी बचाता है। कहते हैं अगर देखा जाए कोई भी डॉक्टर से पूछ लो या किसी से भी पूछ लो, कहते हैं आधे से अधिक बीमारी जो होती है हमारे अग्नि पित्त को आगे बढ़ने से होती है। इसका अर्थ है कि आपका जो होता है मेनली बीमारी पेट से ही, उधर से ही आपको ग्रसित करती है। जितना भी बीमारी उत्पन्न होती है सब पेट के ही विकार होते हैं। तो इस पेट को विकार को अगर सही करना है तो आपको रुक्षांश अपने भोजन में शामिल भी करना है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। कहते हैं अगर प्रकार देखा जाए आगे तो कब्ज नहीं होने देती है। देखिए कब्ज जो होता है उसी को हम कहते हैं जो है बार बार बंदों को लैट्रिन जाते हैं तो वो कब्ज की शिकायत ही होता है, या खुल के उनका पेट जो होता है साफ सुबह सुबह नहीं होता है तो वो इसका मतलब वो कब्ज के शिकायत में आ रखे हैं। ये शरीर में जल धारण में भी सहायक करता है, शरीर में जल को बढ़ाने में भी अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान इसका रहता है, क्योंकि ये जो होता है जो खाने के द्वारा पिया गया वाटर जो होती है उसको अधिक मात्रा में अब्जॉर्ब नहीं करती है, क्योंकि ये रेशे के फॉर्म में
होती है। यह रक्त शर्करा में जो है कोलेस्ट्रॉल अनकता स्तर को बनाए रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए दोस्तों, लोग जो आए दिन जो कहते हैं मुझे शुगर बढ़ गया है, आए दिन कहते हैं कि मेरा जो है कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, लेकिन कोलेस्ट्रॉल और शुगर कैसे बढ़ा? एक तो मीठे चीज़ खाने की वजह से हुआ, और कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ा? आपके बाहरी जो ऑयली चीज़ खाते हो इसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है। दोस्तों, ये कोलेस्ट्रॉल तो आपने बढ़ा लिया है, लेकिन आपको जीवन भर जो है ये आपको सताता रहेगा। तो अभी भी समय है, सुधर जाइए, समझ जाइए, क्योंकि अगर आपने अपने खाने में नुकसान अगर नहीं किया सम्मिलित, तो ये बीमारी आपको घातक भी सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आपको पता है कि ब्लड शुगर की बीमारी जो होती है, अगर एक बार किसी को हो जाए तो जीवन भर भी उसको पीछा लगी रहती है, क्योंकि आए दिन शुगर जो है बढ़ती और घटती रहती है। और हमारे शुगर शरीर में शुगर जो है कम से कम 90 तक तो होना ही चाहिए, नहीं तो हम जीवित भी नहीं रह पाएंगे। तो शुगर का मेंटेन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, और इसके लिए जो है आहार में नुकसान शामिल करना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। और साथ में अगर कोलेस्ट्रॉल की बात की जाए तो आजकल तो आपको पता है कि धड़कन सभी के तेज होते हैं, आपके भी होते होंगे, धड़कन तेज हो जाता है, सोते हो धड़कन तेज हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपका कोलेस्ट्रॉल जो है बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का कारण होता है बाहरी खाना। जो आप बाहरी खाना खाते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। और कोलेस्ट्रॉल जो होता है कई मायने में हृदय रोग जो है, हृदय जैसे विकारों को जन्म भी देती है। कई बार तो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हार्ट अटैक भी देखने को मिला है। तो ये काफ़ी घातक बीमारी है, और इसका सिर्फ एक ही इलाज है, रफेज। यानी जितना भी आप अपने भोजन में नुकसान चीज़ों को सम्मिलित करोगे, ये आपको कई प्रकार की बीमारियों से छुटकारा दे देगा। तो ये बातें कई मायने में इम्पोर्टेंट थी और आपके समझ के लिए भी ज़रूरी थी। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है। आगे का टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, पढ़ाई का मतलब होता है समझना, और समझने का मतलब होता है उसको अमल करना। तो अमल करने में जो करोगे तभी अपना जीवन जो है स्वच्छमय बना के भी रख पाओगे। Our next topic is energy requirement of the body. There is a most important topic here, energy requirement of the body. Our body need to energy to carry out various activity of life. We get this energy by the eating of food. The energy requirement on the usually of depend on various factors like age, sex, amount of work done, occupations, and a special need for like a pregnancy and the quotations. The average of daily requirement of our body from a different as a group are given below. There is a sum of energy requirement in our body. There are infants. Infants here, a sex is not required, but age proportion is a 0 to 12 year month. There is the most important 0 to 12 month, and the requirement quantities is 100 to 120 kg body weight. That is depend upon to the body weight. And the next here, the next children. The children is a sex not required, but here is a 1 to 6 years and 7 to 12 years. To 1 to 6 years is a 1200 to the 1800 calorie weight of the body weight, and the 7 to 12 years old, the 1800 to 2000 is calories per day. There is the most important here. And adolescence is a boy and the girl. The boy is here 13 to 15 years. There are 2500 calories of required, and the girls here is a 30 to 15 years old is a 2200 calories required for the more important. The next is the adult. The adult is a man. The sedentary work is 2400 calories per day, and the mandatory physical work is a 2800. But heavy physical work is a 4000 calories required for the per day. But here the human is a mandatory activity of 2400 required to the per day, and pregnancy later half during questions was up to 1 year. There is the 3300 to the 3700 requirement per day. There is a growing children person engaged in the hard physical work. The labor is a pregnant woman, guarantees of mother, a sportman and person recovering from the illness, and the person working is a called where they require more energy. दोस्तों, यहाँ पर जो आया है शरीर की ऊर्जा आवश्यकताएं। देखिए, ऊर्जा आवश्यकताएं अत्यंत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। हमारे शरीर के जीवन की विभिन्न क्रियाकलापों को के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप जीवन में कुछ भी करते हो, कोई भी एक्टिविटी करते हो, तो इसके लिए ऊर्जा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह ऊर्जा जो है हमें खाना खाने से भी प्राप्त हो जाती है, और जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा आवश्यकता
होती है। कहते हैं अनेक कारक जैसे जो आयु, लिंग, कार्य संबंधी आवश्यकताएं, विशेष आवश्यकताओं में जैसे गर्भावस्था और दुर्गावस्था, ठीक है, यानी गर्भावस्था हो जाए, दुर्ग स्वेतन हो जाए, औसत दैनिक ऊर्जा जो होती है आवश्यकताओं के विभिन्न आयु के अनुसार होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात आती है कि शरीर की ऊर्जा सभी व्यक्तियों के अत्यंत महत्वपूर्ण है। और व्यक्ति क्या, हर जीव जंतु के लिए ऊर्जा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसी से जो होते हैं वो लोग अपना कार्य सुचारू रूप से करने में सक्षम होते हैं। लेकिन देखा जाए तो गर्भावस्था या दुर्ग स्वेतन औसतन जो होती है इसकी बढ़ जाती है, क्योंकि जो महिलाएं जो है गर्भावस्था है वो दो जीवन को जो है पाल रही होती है, तो इनको जो है अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चाहे जो बच्चे को दूध पिला रही है उनके लिए भी ऊर्जा जो है कई मायने में इम्पोर्टेंट रहता है। अब यहाँ पर आ गया है कुछ हमारे समय शरीर की ऊर्जा आवश्यकता है कि किसके शरीर में कितनी आवश्यकता होती है। चलिए हम देखते हैं इस जो है टेबल में। यहाँ पर जो है हमारा टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें आप देख सकते हो कि एक शिशु है, लेकिन यहाँ पर लिंग की आवश्यकता नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि बचपन में शिशु जो होती है कोई भी हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको उचित मात्रा में ही आहार की आवश्यकता होती है। यानी देखा जाए तो उम्र में 0 से जो है 12 साल के बच्चों के लिए 100 से लेकर 120 के जो है शरीर के भार के रिगार्डिंग जो है उनको कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए 2 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए तो 1200 से लेकर 1800 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन अगर देखा जाए सामान्य तौर पे 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए तो 1800 से लेकर 2000 कैलोरी की आवश्यकता होती है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए किशोर लड़कों में तो ये 13 से 15 वर्ष की आयु के होंगे और इनको 2500 कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। अगर लड़कियों में देखा जाए जो 13 से 15 वर्ष की उम्र में व्यतीत कर रहे हैं उनके 2200 कैलोरी की आवश्यकता होती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि लड़कों को अधिक चाहिए लड़कियों को कम क्यों चाहिए। तो जर्नली सी बात है दोस्तों कि लड़कियाँ अलग कैटेगरी में रहती है, उनकी अलग जो है खाने की क्षमता होती है, और जो लड़का होता है उसको हार्ड वर्किंग होती है, तो उसको मसल्स जो है विकास कर रहा होता है, तो इसके लिए जो है उनका अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं वयस्कों में। इसमें देखा जाए किशोर में जो है आ गया, उसके बाद वयस्क है पुरुष में। देखिए पुरुष में जो है अभिभ्रंशील कार्य यानी 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, और हल्की शारीरिक श्रम के लिए 2800 जो है कैलोरी की आवश्यकता होती है। जो है कठिन शारीरिक श्रम करने के लिए 4000 कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर देखा जाए महिलाओं में तो थोड़ी सक्रिय में है जो 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भावस्था महिलाओं के लिए जो 4 माह के बाद ही दुर्स्वतन अवधि में आ जाती है, उनके लिए जो है 3300 से लेके जो है 3700 कैलोरी की प्रतिदिन की आवश्यकता होती है, जो कि कई मायने में इंपॉर्टेंट होता है। और ये कैलोरी से जो होता है शरीर का विकास होता है और शरीर जो है सुचारू रूप से कार्य करने के लिए अग्रसर होती है। Now our next topic is balanced diet. There is the most important topic here, the balanced diet here. You have studied that a balanced diet consists of all nutrition in a varying amount. They're showing in this diagram. There is all types of food here on the plate, and there is also is the glass. There is important of apple, vegetables, is a meals. There are all type. There is the most important for the balanced diet here. The balanced diet is definitely here. To maintain our proper health, one's need to the right types of food is the right quantity. That's the most important. There's a need for generally varies with the age, sex, types of the work, state and body. That's the most important. The maintain proper health. There is the depend upon to the various age, sex and type. But there is important is the balanced diet here. A definition: a balanced diet is a one that contain all instantly nutrition in the suitable proportion of the amount of provide necessary energy and keep the body is a healthy state. There is the most important balanced diet. There is energy and keep the body health state. That is called to the balanced diet. The balanced diet is called there is the main amount there is a carbohydrate, protein, minerals and the fat. There is a amount there is called the balanced diet. The important here a balanced diet is the following quantity. It is the meet to the nutrient requirement of our body. It is a consist of different types of food item and is a provide to a quarter amount of energy. That is the most important here. And the box give below to show in the commanded diet requirement according to the age, sex and different physical activity. So here to show there is the food item adult man, adult woman, child, boy and the girl.
The quails is the pulses, leaf vegetable, other vegetable, root and publics there. Yeah? There is other is a sedentary worker, mandatory worker, heavy worker, and the 1 to 3 years, 4 to 6 years, 10 to 12, or 10 to 12 boys and girls. The different requirement and difference of balanced diet. The balanced diet for a special need. The balanced diet is the varies with the age of occupation and state of health. They under special condition more food is required by on individually let is learn about here. The first is a nutritional need for a growing children. That is the first is the most important. The growing children need to more food is a position of their as a body weight. They need a extra protein to make a new tissue for a growth. There is a most important balanced diet here. The new tissue and growth for the extra protein and more calcium and phosphorus from a formation of bone and red blood cell. There is a more important the calcium and phosphorus for the formation of bone and red blood cells. And third is the vitamin A from a development of healthy eyesight. That is the most important of balanced diet. There is vitamin A is the development of healthy eyesight. The next is the vitamin C are generally health is important and vitamin D is a healthy bone. And the next is a nutrition need for the person is a different occupation. There is the most important here. Person doing hard is a physical work like a rickshaw pullers, laborers, carpenters, mill workers require food which is the rich is energy. The energy is mainly for the carbohydrate and for fat are source here. The similarity is the athletes is also required diet for high energy value. That is the most important here. The next is a nutritional need for doing to pregnancy and lactation. The pregnancy woman has to feed their development of embryos. Therefore, there has a special need for extra nutrition. The pregnant woman is attending the mother should be take first is a extra protein for a tissue growth. That is the most important here. The extra protein for a tissue growth, more calcium and phosphorus to form a bone of the baby. And there is a more iron for making sufficient blood of the baby and more carbohydrate for its hair cell because extra energy required to carry out all the building process linked with the embryos. There is the most important here. And similarly is a nursing mother who is a breastfeed their baby. They also need a special diet to take care of the additional requirement of creation of milk formation. So their diet should be contain more protein, calcium and vitamins. The next is the nutritional need for depending upon to the state of health. The nutritional need for depending upon the state of health. The person recovering from the illness and need a more protein, mineral and vitamin in their diet to require of the damage is causing by the element. If it is a loss of blood due to the surgery on the accident, their patient need more protein and the iron for make of the loss of their blood. दोस्तों यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार। देखिए संतुलित आहार जो है कई मायने में हमारे शरीर को बैलेंस कर लेने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। जो मैं शुरू से ही कहते आ रहा हूँ कि जब तक हमारा शरीर में बैलेंस नहीं रहेगा हम जो होंगे कई तरह की बीमारियों के ग्रसित हो सकते हैं। तो कहते हैं हमारे भोजन में विभिन्न मात्राओं में सभी पोषक तत्व पाए जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर संतुलित आहार का एक नमूना भी दिखाया गया है जिसमें आप देख सकते हो कि दूध है, सेब है, चपाती है, हरी सब्जियाँ, अंडे है, पनीर है, दाल है, चावल है, केला है। तो देखिए इतना सारा भोजन कौन ग्रहण करता है, लेकिन अगर इसमें थोड़ा थोड़ा अमाउंट आपको मिले तो इसको कह सकते हो आप कि ये संपूर्ण आहार है। और संपूर्ण आहार हमारे शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि संपूर्ण आहार लेने से ही आप कई तरह की बीमारियों से जो छुटकारा आपको मिल जाएगा। आए दिन जो आप डॉक्टर के पास चक्कर लगा रहे हो, आए दिन जो है अपने पैसे वेस्ट कर रहे हो, तो उन पैसों से आप जो कुछ अच्छे कार्य में भी लगा सकते हो। तो इसलिए जो है त्रिपाण सेंटर आपको सदैव एक ही बात कहता है कि अगर भोजन करें तो अच्छे से करें। जो भी आपके माता पिता आपके लिए आवश्यक वस्तु बना रखे हैं उनको जो है अच्छे से सेवन कीजिए और हर जो है न्यूट्रिशन के रूप में ग्रहण कीजिए। किसी वस्तु को उसमें से निकाल के अलग कर देना ये कभी भी त्रिपाण सेंटर इसके फेवर में नहीं है। तो आपको चाहिए कि सदैव जब भी भोजन आपको मिले, चाहे वो टमाटर है, लहसुन हो, जो भी हो, उसको जो है सुचारू रूप से भोजन ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसी को ही हम क्या कहते हैं, संतुलित आहार।
कहते हैं अगर देखा जाए तो उचित स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित प्रकार के आहार की उचित मात्रा में आवश्यकता होती है। यह आवश्यकता जो है सामान्यतः आयु, लिंग, कार्य के एवं शरीर की स्थिति आदि के कम या अधिक भी हो सकती है। इसका हम देखेंगे भी। कहते हैं अगर एक संतुलित आहार वह आहार है जिसमें उपयुक्त अनुपात में सभी आवश्यक पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसकी शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है, वह स्वस्थ रहता है। जिसे स्वास्थ्य संतुलित कहते हैं, यानी जो है इसको संतुलित आहार कहते हैं। अगर जनरली भाषा में जानना चाहोगे तो इतना याद रखना, किसी भी पदार्थ से हमें जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, खनिज से हमें जो है उचित मात्रा में हमारे शरीर की मरम्मत या अवयवों के लिए जरूरी पड़ती है, उसे संतुलित आहार कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, देखिए कोई भी भोजन पदार्थ जिसमें उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, मिनरल उपलब्ध हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। ये और भी साधारण भाषा में आपके लिए है। याद रखना कि किसी भी पदार्थ में, किसी भी खाने भोजन में उचित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, मिनरल, ठीक है, उपलब्ध हो उसी को संतुलित आहार कहते हैं। तो ये बहुत साधारण लैंग्वेज है। अगर आपको जनरली किताबी लैंग्वेज याद करना है तो एक संतुलित आहार वह आहार है जिसमें उपयुक्त अनुपात में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिसके शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति भी होती है और यह स्वास्थ्य रखने में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी देता है। संतुलित आहार जो है मुख्य विशेषता यही ले रखा है कि यह शरीर के आवश्यक पोषण की पूर्ति करता है और इसमें विभिन्न प्रकार के जो है खाद्य अवयव भी होते हैं। इसमें पर्याप्त मात्रा में जो है ऊर्जा प्राप्त हमें होती है। नीचे दिए गए बॉक्स में जो है आयु, लिंग और विभिन्न शारीरिक गतिविधियों के लिए जो सिफारिश जो है आहार आवश्यकताएं दर्शाई गई है। दोस्तों यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। इसमें आयु, लिंग और विभिन्न शारीरिक क्रियाकलापों के अनुसार यहाँ टेबल का निर्माण किया गया है। अगर आप देखोगे तो इसमें आहार पदार्थ है, अनाज, दालें हैं, ठीक है, बहुत से पदार्थ मटेरियल दिए गए हैं। इसमें देखोगे तो वयस्क पुरुष, वयस्क स्त्री, बच्चे, लड़का, लड़कियाँ और सबके जो है यहाँ पर कितनी अनाजों की आवश्यकता होती है तो इसके बारे में भी बहुत ही विस्तार पूर्वक दर्शाया गया है। इधर भी देखोगे तो यहाँ पे जो है पदार्थ सब्जियाँ, अन्य सब्जियाँ, जड़ें, कंद, दूध, तेल और वसा, चीनी और गुड़ और फल को जो है उचित मात्रा में आपके शरीर में कितनी आवश्यकता होगी इसके विषय में यहाँ पर दर्शाया गया है। तो आप देख सकते हो कि आप किस आयु वर्ग में आते हो और आपके लिए कौन से आहार जो है उचित मात्रा में लेने की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो विशेष आवश्यकताओं के लिए संतुलित आहार कहते हैं। संतुलित आहार आयु, व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार अलग अलग होते हैं। कहते हैं विभिन्न स्थितियों में एक व्यक्ति को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तो आइए हम इसके बारे में जानें और इसके बारे में समझने की कोशिश करें कि संतुलित आहार आयु, व्यवसाय और स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार कैसे होते हैं और क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो हमारा आता है बच्चों की, यानी बढ़ते बच्चों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं। देखा जाए अगर हम तो बढ़ते बच्चों का अनेक शरीर क्रियाओं में भार संतुलन अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बढ़ते हुए बच्चों के लिए संतुलित आहार लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इन्हें चाहिए कि वृद्धि, नए ऊतकों का निर्माण हेतु प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा की जरूरत पड़ती है। अस्थियों एवं लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए अधिक कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता पड़ती है और स्वास्थ्य दृष्टि विकास के लिए जो विटामिन ए की आवश्यकता होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के लिए। सामान्य स्वास्थ्य के लिए जो है विटामिन सी अत्यंत महत्वपूर्ण अपना स्थान रखता है एवं स्वास्थ्य हड्डी के लिए जो है विटामिन डी जो है बहुत ज़रूरी होता है। तभी आप देखते होंगे कि बच्चों को जो है थोड़ा सा धूप में भी रखने की सिफारिश किया जाता है और तेल लगा के तो खास तौर पे। इससे जो होता है उनकी बोन जो है तो काफ़ी मजबूत होते हैं। अगला जो है विभिन्न कामों में लगे लोगों की पोषण आवश्यकताएं। देखिए दोस्तों बात तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि विभिन्न कामों में लगे लोगों की विभिन्न आहार की आवश्यकता होती है। कठिन शरीर श्रम करने वाले लोगों को जो है रिक्शा चालक, मजदूर, मिल में काम करने वाले लोग आदि के लिए ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिसमें जो है कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, क्योंकि यही जो होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा जो होता है उनके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और वो जो है उनको ऊर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार अगर खिलाड़ी को भी ऐसे आहार की आवश्यकता होती है जिन्हें काफ़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो खिलाड़ियों के भी लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर देखा जाए गर्भावस्था एवं दुर्ग स्वैतन अवधि में पोषण आवश्यकता है। देखिए दोस्तों ये अवस्था बहुत इंपॉर्टेंट होता है औरतों में, जो गर्भावस्था में होती है, जो बच्चों को दूध पिला रही होती है, उन दोनों के लिए जो होता है अवस्थाओं में इनको अधिक उचित मात्रा में जो है भोजन लेने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सिर्फ अपने लिए भोजन नहीं ग्रहण कर रहे होते हैं, बच्चे के पोषण के लिए भी भोजन ग्रहण कर रहे होते हैं। तो इस अवस्था में जो है औरतों को ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है
और सरकार भी इसके लिए कई तरह के कदम उठा चुकी है। कहते हैं अगर एक गर्भवती महिलाओं के जो प्रवर्धनशील भूमि को भोजन प्रदान करता होता है, अंत उसे अतिरिक्त पोषक की आवश्यकता होती है। एक गर्भवती एवं दूध स्वेदन करने वाली महिलाओं को ऐसा आहार ग्रहण करना चाहिए जिसमें निम्नलिखित बातें होना सम्मिलित जरूरी है। तो देखिए कौन सी बातें जरूरी है जो गर्भावस्था और दुग्ध स्वेदन करने वाली महिलाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। पहला पॉइंट तो यही आता है कि उत्कों की वृद्धि के लिए जो है उचित मात्रा में प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। अगर देखा जाए दूसरी अवस्था तो बच्चों की हड्डी के निर्माण के लिए अधिक कैल्शियम एवं फास्फोरस युक्त पदार्थों को जो है महिलाओं को खाने की आवश्यकता होती है। अगर देखा जाए बच्चों में पर्याप्त रक्त निर्माण के लिए अधिक लोह तत्व भी लेने की जरूरत होता है। तभी आपको देखते हो कि जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको आयोडीन जो होती है दी जाती है और आयरन की फॉस्फेट जो दी जाती है, आयरन की गोली भी दी जाती है। तो ये काफ़ी मायने में इंपॉर्टेंट रखता है। कहते हैं स्वयं के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट क्योंकि भ्रूण परिवर्धन जुड़ी हुई समस्त निर्माण प्रक्रियाओं के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ये भी बात काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है कि स्वयं के लिए अधिक कार्बोहाइड्रेट युक्त भ्रूण परिवर्धन से जुड़ी हुई समस्त जो है निर्माण प्रक्रियाओं के लिए जो है अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार अगर दूध पिलाने वाली माताओं को भी जो है दुग्ध निर्माण हेतु अतिरिक्त एवं विशेष भोजन की आवश्यकता होती है। अंततः उनके आहार में अधिक प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिनों की आवश्यकता रहती है। अगर जो हमारा दोस्तों है स्वास्थ्य की स्थिति के अनुसार पोषण आवश्यकता है। देखिए ये कई मायने में इंपॉर्टेंट रहता है। कहते हैं रूपांतर बीमारियों के अंतराल जो है स्वास्थ्य लाभ करते हुए व्यक्ति को अधिक प्रोटीन, खनिज व विटामिन युक्त आहार की आवश्यकता होती है ताकि जो है रुद्र अवधि में हुए क्षतिपूर्ति की जा सके। यदि किसी दुर्घटना में या शल्य क्रियाओं में रक्त का हर्ष होता है तो रक्त की जो है क्षतिपूर्ति के लिए अधिक प्रोटीन व जो है लोह युक्त भोजन की आवश्यकता रहती है। तो इसलिए स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार पोषण आवश्यकता रहती है और इसके लिए जो है महिलाओं को जो है उचित मात्रा में भोजन करने की आवश्यकता पड़ती है। The next topic is what is the health and disease. There is a most important topic here. What is the health and disease? According to the World Health Organizations (WHO), the health is defined as a health is a state of complete physical, mental, and social well-being, and there is not a merely absence of disease and infirmity. There is a most important. There is a health is here. The WHO is defined here the physically, mentally, and social well. That is called to the health. The health is the most important for the all organism. There is a disease. The disease is a malfunctioning of process related to the content part of the whole body in which the normal function are disturbed to the damage. Disease is a literate of mean not at a as of disease means disease is a not. There is a next here. Deficiency disease. The deficiency disease is there which is occurred due to deficiency one or more nutrient, protein, carbohydrate, vitamin, minerals in our diet is called deficiency disease. There is a malnutrition is the most important disease here. The malnutrition, the condition resulting from as a lack of nutrient in the diet is called the malnutrition. There is the condition resulting from a lack of nutrient in the diet. It's called malnutrition. There is a large number of people in our country suffer from the malnutrition. The malnutrition affects the health of children, advising as it is a result of physical and mental reductions. There is the most important there. Yeah? The deficiency disease is three types. The first is a protein energy malnutrition, means PEM. The protein energy malnutrition, and second is a mineral deficiency disease, and third is a vitamin deficiency disease. There is a first here. The protein energy malnutrition, the PEM. The protein energy malnutrition here, generally the growing of children suffer from protein energy malnutrition as the required amount of protein need from their growth and development is not available. A number of children in the group as of the 1 to 5 years suffer from this disease as a PEM is due to the two reasons. The first is lack of protein and carbohydrate both in the diet. There is a most important here, lack of protein or carbohydrates are both in the diet, and second is a more intake of carbohydrate than a protein. There is a most important, the protein energy malnutrition result is a two disease. It is a murmurs and kwashiorkor. There is kwashiorkor is a murmurs. There is most important disease is a protein energy malnutrition. The first is a murmurs.
The murmurs is here, it is causing due to the deficiency of carbohydrate, fats and protein. It is usually affect to the infant below to the age of 1 year, and they show their diagram. The hair is a color of change, mysteries, moon's face, thin muscles, is present, and swelling of abdomens and the underweight of the ear. There is a murmurs. There is a disease of the maramus. There is a symptom, the wasting of muscle, reduce of child skin and bone, and for the skin, sun can be eyes and the thin face, and thinking of the limbs and the abdominal wall. The also the symptom is a maramus is a retarded physical and mental growth, and the ribs become the prominent of the pigeon chest, and the edema and the skin and the pigmentation and absent. There is a next disease here is a kwashiorkor. Kwashiorkor is this disease. In this disease is involved with the mother stop feeding their babies with the breast milk, and the child given to the traditionally family food having low protein. The disease on there is a kwashiorkor. The kwashiorkor is a disease, a very dangerous disease. That is shown in this diagram. There is a normal hair, old man's face, thin muscle, thin fat, edema. There is a most important disease on there is a child. Here the show the main symptom of the kwashiorkor. There is symptom here. The child suffering from the kwashiorkor disease is the showing the following symptom. The first is a underweight, has a protruding bellies, and the skin is a dark and scaleless hair. And the second, there is a has enlarged liver, has a anemia, suffer from the expected to the diarrhea and stones growth, loss of appetite. And also the hair become a reddish and swelling of the legs and the feet due to the retention of water with their cell edema. The child is suffering from the is hair kwashiorkor. There is on the maramus can be recovered. It's a quarter protein and carbohydrate rich food is given. तो यहाँ पर जो है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्वास्थ्य एवं रोग क्या है। देखिए स्वास्थ्य व रोग क्या है। स्वास्थ्य अगर व्यक्ति है तो उसमें रोग उत्पन्न हो जाती है, अगर रोगी व्यक्ति है तो उसको स्वास्थ्य किया जाता है। कहते हैं इसी पे जो है पूरा दुनिया की वेस्ट चल रही है। तो इसमें अगर देखा जाए जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने क्या दिया है स्वास्थ्य के ऊपर परिभाषा। आपको पता है कि स्वास्थ्य पुण्य शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता की स्थिति है, न कि केवल रोग का न होना या अस्वस्थ होना। देखिए दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि WHO ने सबसे आसान जो है यहाँ पर वर्डिंग दिया है कि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य वही होता है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से कुशल हो और कुशल करने में सक्षम हो, उसी को ही हम स्वास्थ्य नाम दिया गया है। अगर यहाँ रोग देखा जाए तो रोग एक ऐसी स्थिति है जिसमें शरीर या उसके किसी भाग का जो है कार्य विक्षिप्त और क्षतिग्रस्त होता है। शाब्दिक रूप में देखा जाए डिसीज का अर्थ होता है डिस मतलब नॉट, और इसका मतलब होता है आराम, यानी डिसीज का मतलब होता है नहीं आराम, यानी आपको आराम नहीं मिलता है। तो इसे बीमारी का तो आप समझ ही गए होंगे जो आराम में ना हो। यह एक पुरानी फ्रांसीसी शब्द डिसीज का अंग्रेजी रूपांतर जिसका अर्थ होता है डिस अवे एस इजी, यानी जब आराम दूर हट जाए, यानी जब आपको बेचैनी महसूस होने लगे, जब आप आराम को त्याग दो, तो इसका मतलब है कि आप बीमारी से ग्रस्त हो चुके हो, आपका शरीर जो है किसी न किसी रूप में ग्रसित हो चुका है और आपको जो है आराम नहीं मिल रहा है। इसलिए इसका अर्थ जो है आराम न मिलना या कहते हैं आराम दूर हट जाए। अगर देखा जाए हिंसा जनित रोग, यानी हिंसा जनित रोग जो होती है एक या अधिक पोषक जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज की हमारे आहार में कमी के कारण होने वाले रोगों को हिंसा जनन यानी अभावजह यानी कमी से उत्पन्न रोग डिफिशिएंसी डिसीज कहते हैं। यानी डिफिशिएंसी डिसीज का मतलब दोस्तों यही होता है, अगर साधारण शब्दों में समझा जाए तो जिसमें जो है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन की जो है बहुत कमी हो और इसकी वजह से जो होता है हिंसा जनन बीमारी हो जाता है, जिसको हम डेफिशिएंसी डिसीज भी कहते हैं। इसमें जो है सबसे इंपॉर्टेंट आता है बीमारी माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन जो है कई मायने में बहुत खतरनाक बीमारी है जो कि देखने को मिलता है और ये कई बार एग्जाम में भी आता है। कुपोषण किसे कहते हैं या माल न्यूट्रिशन क्या होता है? तो कहते हैं अगर माल न्यूट्रिशन की बात किया जाए, कुपोषण की बात किया जाए तो हमारे पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न स्थिति को हम कुपोषण कहते हैं। जिसमें माल मतलब बैड,
कु मतलब खराब, न्यूट्रिशन मतलब पोषण, यानी खराब पोषण, सिंपल वर्ड देखा जाए तो। यानी आप समझ सकते हो कि आज जो है जहाँ पर सरकार कह रही है कि हम हर घर में बच्चों को स्वास्थ्य करने के लिए जो है आहार श्रृंखला चला रहे हैं, बच्चों के जो है मिड के रिगार्डिंग उनको भोजन दिया जा रहा है, लेकिन भोजन की क्वालिटी भी अच्छी नहीं होती है और कहते हैं कि आज बच्चे जो है कुपोषण शिकार दिन पर दिन होते ही चले जा रहे हैं। तो आने वाला समय में न जाने कैसे हमारा देश जो होगा एक बहादुर बच्चा को बनाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। क्योंकि जब बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाएंगे तो हमारे देश में कैसे जो है अच्छा फौजी बनेगा, कैसे अच्छे सिपाही बनेंगे। क्योंकि आपको तो पता है कि इसके लिए माल न्यूट्रिशन की बीमारी को दूर करने के लिए हमें जो है भोजन पदार्थ लेने की आवश्यकता है, लेकिन शायद ये बात आपको ज्ञात नहीं है कि भोजन की जो है पैसे इतने बढ़ चुके हैं इनको खरीदने वाले चीज़ों से, कहते हैं इसका जो है आप समझ ही नहीं सकते। आए दिन जो है भोज्य पदार्थ चीज़ों पे इतने टैक्स लगा दिए गए हैं, इतने पैसे बढ़ा दिए गए हैं, जो कि आम गरीब व्यक्तियों से ये जो है कोसों दूर चली गई है। तो सरकार को इस बात पे जो है गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। कहते हैं आए दिन जो है रेडियो टेलीविज़न में जो है इस पर बहस चलती रहती है, आए दिन देखने को मिलता है कोई ना कोई चीज़ के जो है रेट बढ़ती ही रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कहते हैं आप 3 रुपया बढ़ाते हो और 2 रुपया सस्ता कर देते हो तो सोचते हो कि मैं बहुत आगे कर लिया हूँ, बहुत अच्छा गवर्नमेंट चला रहा हूँ। लेकिन आप एक आम इंसान बन के देखो, आम गरीब बन के देखो, तब आपको पता लगेगा कि एक गरीब व्यक्ति के लिए एक समय का आहार जुटाना बहुत ही दुष्कर्म कार्य है और ये संभव भी होना, उनके भोज्य पदार्थ को सम्मिलित करना संभव ही नहीं है। उनके 2 वक्त की रोटी मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है, तो साग और सब्जी कहाँ से मिलेगा? इस बात को सरकार को सोचना चाहिए और विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि आए दिन जो है इन चीज़ों खाद्य पदार्थ की जो रेट है आसमान छू रही है, जो कि आम गरीबों के लिए एक बहुत बड़ा सबब है और बहुत बड़ा जो है सरकार की तरफ से तमाचा है। क्योंकि सरकार बेशक ये कहती है कि हम जो है आपके लिए कर रहे हैं, यानी अच्छे दिन आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी अच्छे दिन एक सरकार की वजह से आया है। हमेशा बुरे दिन ही देखने को मिला है। दिन प्रतिदिन जो है खाद्य पदार्थ की रेट बढ़ता चला जा रहा है और इसका कई मानने में कई कारण है जिसको आपको सोचना चाहिए और विचार करने की आवश्यकता है। तभी तो मैं कहता हूं कि जब हमारे देश के बच्चे कुपोषण के शिकार होंगे तो कहां से मैं ऐसे व्यक्ति लाऊंगा जो हमारे देश की सरहदों की रक्षा कर सकते हैं, हमारे जो है बीमार व्यक्तियों के स्वास्थ्य की भला कर सकते हैं, ऐसे कहां से लाऊंगा? ये थोड़ा सोचने की वाली बात है। तो इसलिए कुपोषण जो है आज के समय में भारत में जो है एक पूरी तरह से पांव फैला चुका है और इस बात पे जो है हर एक व्यक्ति को सोचने के लिए विवश कर रही है। कहते हैं हमारे देश में बहुत से लोग कुपोषण के शिकार हैं, जो कि जनरल सी बात है। जो कुपोषण बच्चों के स्वास्थ्य पर जो है विपरीत प्रभाव पड़ता है और इसके फलस्वरूप जो है शारीरिक मानसिक रूप से बच्चे कमजोर हो जाते हैं और बच्चे कमजोर होंगे मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तो वो जो है किसी के जो है कार्य के लिए लायक नहीं रह जाएंगे। अगर देखा जाए हिंताजनक रोग जो होते हैं 2 प्रकार के यहाँ पर दिखाया गया है। एक जो होता है प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी PEM यानी प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, और दूसरा जो है दोस्तों वो है खनिज अल्पता रोग यानी मिनरल डेफिशिएंसी डिसीज। तो ये दोनों बीमारी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसके विषय में आपको जानना चाहिए क्योंकि ये एग्जाम में भी आता है। और एग्जाम में क्या आता है आपको समझ होना चाहिए कि अगर आप भोजन पदार्थ को न सम्मिलित करोगे तो इसमें कैसा आपका शरीर दिखेगा और आप किस प्रकार लगोगे। तो चलिए देखते हैं। पहला जो है हमारा प्रोटीन एनर्जी मालन्यूट्रिशन यानी PEM। यहाँ पर दोस्तों हमारा है प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण। देखिए सामान्यतः जो है बढ़ते बच्चे अपने वृद्धि एवं परिवर्धन के लिए आवश्यक मात्रा में प्रोटीन न मिल पाने के कारण प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। और देखा जाए तो 1 से 5 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चे इस रोग के जो है अधिक शिकार होते हैं। कहते हैं प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण 2 कारणों से होती है। एक जो होता है प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के आहार में अभाव की वजह से। आज कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन जो है मिलना संभव ही नहीं है बच्चों के लिए, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूं कि महंगाई जो है प्रत्येक व्यक्ति के कमर को तोड़ दिया है। तो कैसे अपने भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट को सम्मिलित करेंगे, संभावना ही बहुत कम है। कहते हैं प्रोटीन की अपेक्षा जो है कार्बोहाइड्रेट का अधिक मात्रा में उपभोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। अगर देखा जाए प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के परिणाम स्वरूप 2 बीमारियां हो जाती है। एक होता है मरमस और एक होता है क्वेसिकोर का बीमारी हो जाती है, जो कि दोनों ही बहुत ही घातक और बहुत ही चिंताजनक है।
देखिए आप अगर मैरामस के अगर देखोगे बीमारी तो ये कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन की कमी के कारण होती है। ये सामान्यतः जो 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों में होती है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख सकते हो चित्रों में, जहाँ पर बच्चों की क्या दशा है। कहते हैं बालों का रंग बदल जाता है, दुखी रहते हैं, जो है गोल जो है चेहरा हो जाता है, पतली पेशियाँ, वसा उपयुक्त हो जाता है, फूला हुआ गर्दन होती है, सूजन नहीं रहती है और यहाँ अल्प भार रहता है। तो ये जो है मैरामस रोग से पीड़ित एक शिशु का चित्र दर्शाया गया है, जो कि बहुत ही दुखदायक है। अगर ऐसे बच्चे हमारे धरती में जन्म लेंगे तो ऐसी बीमारियों से ग्रसित होंगे, तो ऐसे बच्चे जो है कैसे भविष्य बन सकते हैं, इसमें सोचने वाली बात है। अगर देखा जाए इनके लक्षण जो होती है जो है मांसपेशियों के क्षय के कारण बच्चा जो है हड्डी व त्वचा का ढांचा मात्र रह जाता है, यानी हड्डी का ढांचा ही दिखता है। जो है झुर्रीदार त्वचा हो जाती है, धसी आंखें, पतला चेहरा, अंगों व पेट की भित्तियों का पतला हो जाना, शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि में मंदता आ जाती है और पसलियां उभर जाती है और कपोत बख्श हो जाता है। कहते हैं सब एक प्रकार की सूजन व त्वचा रजक जो है अभाव रहता है। तो इस तरह की बीमारियां जो है देखने को मिल जाती है। दोस्तों अगला बीमारी जो है हमारे समक्ष है वो है क्वेसियोकर, यानी क्वेसियोकर जो होती है ये रोग तब विकसित होती है जब माँ अपने बच्चों को स्तनपान कराना बंद कर देती है और परंपरागत जो है पारिवारिक भोजन देना आरंभ कर देती है, जिससे प्रोटीन की अल्पता हो जाती है। देखा जाए तो आज जो है जो माताएं काम करती है, जो जाती है काम करने, उनमें के बच्चों में ये बीमारी देखने को मिल जाता है। वो माँ जो होती है अपने स्तन का दूध जो है नहीं पिलाती, जिसकी वजह से बच्चों के जो है इस प्रकार के बीमारियों का सामना करना पड़ जाता है। अगर इसके लक्षण की बात करें, यानी कि और का लक्षण की बात करें, तो इसमें लक्षण तो यही सामान्यतः दिखेगा आपको कि बाहर का सामान्य से कम हो जाता है, बाहर निकली हुई पेट आपको नजर आता है, त्वचा काली व जो है पली युक्त हो जाती है, बड़ा हुआ युकृत हो जाता है, रक्त अल्पता देखी जाती है, लगातार दस्त का शिकार बना रहता है और अवरुद्ध जो है वृद्धि हो जाती है, भूख न लगना इसमें सबसे बड़ा कारण बन जाता है। बाल जो है लाल रंग का हो जाता है, टांगे और पैरों में सूजन आती है और कोशिकाओं में जल्द अधारण के कारण शॉप हो जाती है। तो इसका उपचार तो एक ही है, जिसको आपको भी जानना चाहिए कि मैरामस और क्वेसियोकर से पीड़ित बच्चों को यदि ऐसा आहार दिया जाए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट जो है प्रचुर मात्रा में हो, तो वह स्वास्थ्य लाभ कर सकते हैं, यानी स्वास्थ्य का हो सकते हैं। यानी उनके भोजन में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन उचित मात्रा में विद्यमान होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन ये कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन मिलेगा कहाँ से? क्योंकि आए दिन जो है साग सब्जियां, दाल, चावल इतने रेट बढ़ रहे हैं कि आम लोगों से मुंह के पहुंच से भी दूर होता चला जा रहा है। तो इसमें जो है सरकार को बहुत गंभीर बनना है और गंभीरता से इस विषय पे लेना है, तभी जो है ये बीमारियों से हमारे देश को बचाया जा सकता है। आज देख लो कि आए दिन जो होते हैं जो है खाने पीने की चीज़ के वस्तु जो है आए दिन महंगाई की मार झेल रही है और जो है बिजली, पानी, ठीक है, जो बेकार की चीज़ें हैं उन पर जो है फ्री कर रहे हैं। तो ये सब कहाँ जाएगा? ये साधारण भोजन वाले पदार्थ पे ही उसका रेट आएगा। तो ये बहुत बड़ी समस्या है जो कि हमें भी समझना है और सरकार को भी समझना है कि लोगों को ऐसे फ्री की वस्तु को ना दे के जो खाने वाले वस्तु हैं उन पे कुछ किया जाए। The next topic is mineral deficiency disease. There is a most important topic here, the mineral deficiency disease. The common deficiency disease of iron, calcium and iodine are given below. The anemia, iron deficiency disease. The anemia is here, iron deficiency disease. The iron is important for the formation of the respiratory pigment is a hemoglobin and present in the blood. Deficiency of iron result in the reduction of the red blood cell. The red blood cell is the reason this reduction here is a hemoglobin. This reduces the oxygen carry capacity of blood. There is the most important here. They reduce the oxygen carry capacity in blood. There is the cause of mineral deficiency disease. A person suffering from the anemia become a pale, tired easily and lose the appetites and the loss of weight. And the disease can be occurred by the eating food stuff rich in iron and vitamin B12. As example, eggs, meat, liver, milk, and the green leaf vegetable such as spinach and fruits like the apple, banana, guava. The iron tablet and the tonics can be also supplement to the food. There is the most important. And the next here, deficiency of calcium, phosphorus is a vitamin D. The calcium cheese consists of bone and teeth and the regulator heartbeat and muscles contraction. The help in the clotting of blood and the calcium metabolism is closely related to that of phosphorus and vitamin D.
There is a deficiency of calcium cases or rictus and children on osteomalacia and the adult rectus. Given here figure, there is a mainly here the bone becomes soft, get deformed to the bending of easily, and the wall acts bend the legs and pigment chest, and the loss of teeth enemies as outer shining layer in the teeth, and then the soft bone that tend to the fracture easily. There is a most important here, the bone that tend to the fracture easily. The osteomalacia here, the person suffering from the osteomalacia, so the softening of the bone and pain of bone is which is the tend to the fracture easily. There is a reason being here called the rictus and the osteomalacia can be prevented by giving diet rich in calcium like a milk, curd, livers, oil, and the eggs yolk and the green leaves vegetable. There is osteomalacia disease is cured by there is the like a milk, cod liver oil, egg yolk and the green leaf vegetable. दोस्तों यहाँ पर जो हमारा समक्ष आया है वो है खनिज अल्पता रोग। देखिए खनिज अल्पता रोग जो होती है यह सामान्य लो कैल्शियम और आयोडीन की कमी से होने वाली रोग है जो कि बहुत काफ़ी जो है इंसानों में देखने को मिला है। कहते रक्तता यानी एनीमिया सबसे बड़ा बीमारी तो इसमें यही आता है कि लो खनिज तत्व की वजह से जो है एनीमिया नाम का बीमारी हो जाता है। एनीमिया जनरली इसका मतलब यही होता है कि किसी की बॉडी में अगर 6-7 ग्राम है तो इसका मतलब एनीमिया बीमारी से शिकार हो रखा है और इसमें जो है उसकी मृत्यु तक भी हो सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि इसको समय रहते जो है सही उपचार किया जाए और इसकी रक्त की मात्रा जो है बढ़ाई जाए। कहते हैं रक्तता अर्थ है कि रक्त की मात्रा यानी क्वांटिटी में तथा गुणवत्ता यानी क्वालिटी दोनों में कमी होना। कहते हैं रुधिर में विद्यमान श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन का निर्माण लोह तत्व की महत्वपूर्ण भूमिका ही होती है। यानी लोह तत्व के कारण ही जो है हमारा ब्लड हीमोग्लोबिन यानी रेड ब्लड सेल जो है रेड दिखता है वो हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही दिखता है। और इसमें जो अगर देखा जाए लोह तत्व की कमी से लाल रक्त कणिकाओं में कम हो जाती है और जिसके फलस्वरूप रक्त की ऑक्सीजन धारिता की क्षमता हो जाती है और रक्तता से पीड़ित रोग जो है चेहरा पीला पड़ने लग जाता है। तो ये जनरली आप देख सकते हो कि जिसका जो है चेहरा पीला होने लग रहा है इसका मतलब है जो है वो एनीमिया बीमारी के शिकार होता चला जा रहा है। उसको भूख एवं वजन कम होता चला जाता है, भूख भी कम लगती है और वजन भी कम हो जाता है और वह शीघ्र ही थकने लग जाता है। कुछ लोग जो है एनीमिया के अल्पता रक्त अल्पता कहते हैं जो सही नहीं है, ये जो है ओलिगोसीमिया का पर्याय है। कहते हैं अगर इन बीमारियों के जैसे लुकीमिया है तो इसके उपचार के लिए कुछ बातें जो है आपको यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। कहते हैं इसके उपचार के लिए ऐसा आहार दिया जाना चाहिए जिसमें लो और विटामिन B12 प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो, जैसे अंडा, मांस, युक्तित दूध, हरी पत्तेदार सब्जियाँ जैसे पालक, वह फल हो गया, सेब हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। साथ में केला, अमरूद भी जो है इसके उपचार के लिए पर्याप्त होती है। अगर आयरन टैबलेट जो है टॉनिक भी भोजन के जो है अनुपूरक के रूप में दिए जा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जब आप साग सब्जियां नहीं खाओगे, जब इस चीज़ों के खाने में आप अल्पता करोगे तो 100% जो है आपको टॉनिक ही लेना पड़ेगा या टैबलेट लेना ही पड़ेगा, तभी जो है आपका जो है रक्त की मात्रा पूरा किया जा सकता है। अगर देखा जाए कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन D की अल्पता से एक कमी, कहते हैं कैल्शियम जो है हड्डी व दांतों के मुख्य घटक माना जाता है और इस वजह जो है मांसपेशियों संतुलन के लिए निमित्त भी करता है, रक्त संचलन में जो है मदद भी करता है और कैल्शियम 4 के जो है फास्फोरस विटामिन D के उपचार में काफ़ी निकट का संबंध भी है। कहते हैं कैल्शियम की अल्पता से जो है बच्चों में रेक्टस रोग और वयस्कों में जो है ऑस्टियोमेलेसिया नाम की बीमारी हो जाती है। हड्डियों में कैल्शियम झड़ जाने के कारण जो है ऑस्टियोपेरोसिस अस्थि सुरक्षता यानी अस्थि रंध्रता की बीमारी भी देखने को मिल सकता है। अगर रेक्टस का हम सामान्य रोग के बारे में देखें तो कहते हैं इसकी अस्थियाँ जो है मुलायम हो जाती है और विकृत हो जाती है और आसानी से मुड़ जाती है और ये धनुष के आकार के टांग हो जाती है, जैसे हमने डायग्राम भी पीछे देखा था। कहते कपाते बख्श हो जाते हैं और दांत के जो है इमेल का क्षय हो जाता है, मुलायम अस्थियाँ व सरलतापूर्वक जो है अस्थि भंग भी हो जाती है। तो ये सारे जो है रेक्टस के रोग के लक्षण दिख सकता है। उसके पश्चात ऑस्टियोमेलेसिया, देखिए ये अदृष्टता से पीड़ित व्यक्तियों के निम्न लक्षण होते हैं, जैसे हड्डी का कमजोर पड़ जाना, हड्डियों में दर्द व सहज अस्थि भंग हो जाना। तो ये जो है बहुत काफ़ी होता है। यहाँ अस्थि भंग का अर्थ होता है दोस्तों हड्डी का टूट जाना, ठीक है। तो ये हड्डियों में अगर मान लीजिए कमजोर हो जाता है, हड्डियाँ मुलायम हो जाती है तो टूटना तो संभव रहता ही रहता है। अगर देखा जाए इसके उपचार के विषय में
तो जो है रेक्टस रोग जो है ऑस्टियोमेलेसिया की रोकथाम के लिए कैल्शियम प्रचुर आहार दिया जाना चाहिए। और साथ में अगर कैल्शियम की मात्रा अगर नहीं दिए जा सकते हो तो इसको आहार में जो है दूध, कॉल, लीवर्स ऑयल, अंडे की जर्दी, हरे पत्तेदार सब्जियां आदि भी सम्मिलित कर सकते हो। The one next topic is a Gottris. Gottris is the iodine essential for the synthesis of thyroxine. The thyroxine is a hormone produced by the thyroid gland. And the iodine deficiency causing the thyroid gland is enlarged and swell. This is called the Gottris. And the Gottris here symptom, the person suffering from the Gottris has a protruding eyes, stomach growth, poorly appearance, irregular heartbeat, and low intelligence and deficiency of iodine result is another disease is called the creatolism. And there is a corpse, there is a use of the iodized stable and the salt and eating seafood and fish. That is the main, here is a cause for the gut disease. The here is a show the criticism. There is a person suffering from the criticism show the stung growth, retards mental growth and decline of priorities and the low metabolic rate. And the next is a vitamin deficiency here. If the diet is a deficiency in one or more vitamin like A, B complex, C, D, E, K, it is a lead to the variety of diseases given table. दोस्तों अगर देखा जाए गलगंड, देखिए गलगंड जो होती है गैटर्स गेंगा भी कहते हैं इसको, कहते हैं ये जो होता है मेनली आयोडीन की कमी के कारण होता है, जिसके बारे में हम कई बार चर्चा भी की है। कहते हैं आयोडीन जो है थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड द्वारा संश्लेषित हार्मोन होती है और ये जो है आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बड़ी हो जाती है और फूल जाती है। इसे हम ग्वाइटर्स भी कहते हैं, ग्वाइटर्स इसको कहा जाता है। अगर देखा जाए इसके सामान्य लक्षण तो कुछ इस प्रकार उसके लक्षण दिखेंगे। इसमें जो होगा लक्षण दोस्तों ये होगा, बाहर निकली आंखें आपको दिखेगा, रुद्र वृद्धि दिखेगा यानी जिसको वृद्धि होगा, बहुत मद होगा, इसमें मोटापा देखने को आपको मिल जाएगा, अनियमित हृदय संपादन यानी जो हार्ट बीट है और रेगुलर हो जाएगा, कभी धड़केगा कभी बहुत ही तेजी से धड़केगा। इसके पश्चात सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी बीमारी का लक्षण होता है वो मद बुद्धि होती है। ठीक है, इसमें जो है आयोडीन की अल्पता से एक अन्य रोग भी हो जाता है, बौनापन हो जाता है। तो ये जो होता है आयोडीन की कमी के कारण बौनापन भी आपको देखने को मिल सकता है। अगर देखा जाए उपचार के रूप में तो आपको कुछ भी नहीं करना है। उपचार के रूप में जो है प्रतिदिन आप जो है भोजन में यूज़ करते हो नमक, तो उसको जो है सिर्फ आयोडीन नमक में कन्वर्ट कर देना है। साधारण नमक जो खाते हो उसको आयोडीन नमक में कन्वर्ट कर देना है और इस सारी बीमारी से जो है आप बहुत आराम से छुटकारा पा सकते हो। तो इसमें आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ मछलियों का सेवन करने से ये बीमारी का जो है उपचार किया जा सकता है। यहाँ बात आया है बौनापन, तो क्रिटिलिज्म कहते हैं, बौनापता कहते हैं। इस रोग से जो पीढ़ी व्यक्ति में बौनापन आता है, रुद्र वृद्धि आ जाता है, मदिता मानसिक विकास नहीं होती है, निलंबित यौवन आरंभ हो जाता है, निम्न उपचार की दर दिखाई पड़ती है। तो इसमें जो है यौवन आरंभ जो होती है वो भी नहीं हो पाता है। तो ये सारे के सारे जो होता है आयोडीन की कमी के कारण देखने को मिल सकता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये भोज्य पदार्थ में हमें सम्मिलित भी करने की आवश्यकता होती है। द नेक्स्ट टॉपिक इज ओबेसिटी. Obesity is here and the exclusive intake of food. There is a most important topic. If a person continue to eat more food than required by his body, he soon become overweight and bulky. Why? The exclusive of the carbohydrate and fats instead of the providing energy get accumulate in a body. There is the overweight and there is the goes will to obesities. The overweight and the bulkiness of person's body due to the accumulation of the carbohydrate and fat is called obesity. Obesity is very bad thought for our generation because our generation is a rest positions and the causing of obesity is here overeating. The maximum persons are eating to the every time. There is goes ways to the obesities. And there are causing of obesities, overeating, insufficient exercise, and hormonal imbalance. Is a deficiency of thyroxine and other metabolic disturbance. There is a more important of causing of obesities here, and the obesities is today a modern generation. There is a all the person are attention this disease. So here is a harmful effect on obesity here. As obese person tend to heavy is a high cholesterol means fatty substance
is deposited in the blood arteries, and this lead to the hypertension. Hypertension means high blood pressure. The hypertension is high blood pressure. Atherosclerosis, yes, means the hardness of arteries. If coronary attack, there is a heart attack. There is also, it is very dangerous for today. There is the causing for the heart attack and high blood pressure, and the diabetes and respiratory problem. There is a causing for the harmful effect of obesity. There is a mainly is a heart attack, blood pressure, and diabetes and respiratory problem. The here next is a method to prevent obesity. Obesity is there was is a person should be very carefully about diet. Some suggestions are here: avoid the fried food. There is a first is avoid the fried food, not to be take a carbohydrate rich and food. The next is a not we take a unsaturated fatty like a ghee and banaspati hydrogenated vegetable oil. Understand, take a unsaturated fat like a oil and the two in the little quantity as a possible. And take a regular physical exercise. And the fifth is eat green and the leafy vegetable to add a roughness. And the sixth is suffering from the hormonal imbalance. Take a advice to the physician. There is the most important here. The effects of exercise intake of iron, it leads to be a condition called to the hemosiderosis, means large deposit of iron to the liver, and this may be causing constipations and diarrhea. Second is the nausea and the abdominality, and third is the heart burn, and fourth is a epigastric pain. Epigastric pain is the most important here. And the next here, effect of excessive of intake of vitamins is a hypervitamins. There is some person tend to take up vitamins in a excessive amount as excessive intake of water as soluble vitamins. The vitamin B complex and C and maybe not be cause any harm to be a body because they are excreted out through the urine. And intake of fat soluble vitamins, vitamin A and D can be toxic poison to the body which may be lead to be congenital disease. And the disease is causing by the presence of vitamins in the excessive quantity in the body is called hyper is a vitaminosis. Is a hypervitaminosis here. The hypervitaminosis A, excuse of vitamins A accumulate in the liver is a toxic, and this result is a loss of hair, dryness, pain, swelling of the long bones, and loss of appetite. And the nauseous and the abdominality also fail here. And the hypervitaminosis is D. The excess of vitamin D lead to high calcium absorptions in the intestine. This result in a deposition of the calcium in a soft tissue of body like a kidney and tiredness and the nausea and the loss of weight. So we find that both deficiencies cues of nutrition harmful to our body. देखिए दोस्तों, हमारा जो अभी टॉपिक आया वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ओबेसिटी। देखिए ओबेसिटी मतलब मोटापा। कहते हैं मोटापा से जो है आज के समय में प्रत्येक महिला जो है इससे काफ़ी दुखी रहती है। इवन कि आप पुरुषों में भी मोटापा देखने को मिलता है। देखिए मोटापा कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी हमारी कुछ गलतियों की वजह से जो है ये मोटापा आती है। और मोटापा का जो है मेनली अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और वसा का जो है सेवन करने से है। कहते हैं अगर कुछ चीज़ों को अगर सही ढंग से अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो हमारे शरीर के लिए अमृत तुल्य होता है, लेकिन वही अगर गलत तरीके से अधिक अमाउंट में लिया जाए तो वो हमारे लिए शरीर के लिए अभिश्राप सिद्ध होता है। तो आज के समय में मोटापा जो है प्रत्येक इंसान के लिए एक अभिश्राप सिद्ध हो गया है। और कारण क्या है? मोटापा का हम लोगों के लालच है। लालच क्या होती है कि जब भी हमारे समक्ष कोई फ्राई फूड आता है, कोई जंक फूड होती है, उसको हम धड़ल्ले से खाने लग जाते हैं। तो इसके वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी में कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होता है, हमारे हार्ट अटैक आती है, तो कई तरह की बीमारी जो है हमें देखने को मिलता है। लेकिन देखा जाए यहाँ बताया गया है यदि कोई व्यक्ति अपनी शरीर की आवश्यकता से अधिक आहार करता है तो वह शीघ्र ही अधिक भारी मोटापा हो जाता है। देखिए कोई व्यक्ति अगर अपना क्षमता से अधिक अगर भोजन ग्रहण करे तो जनरल सी बात है उसको मोटापा तो होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। अगर मोटापे के कारण जिम्मेवार होती है तत्व होती है कार्बोहाइड्रेट व वसा से अधिक मात्रा ऊर्जा प्रदान करने की क्षमता पर शरीर में जमा हो जाती है। देखिए
कहते हैं कार्बोहाइड्रेट और बासा। देखिए बासा की बात हम करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बासा उन व्यक्तियों को खाना चाहिए जिन्हें वो कड़ी मेहनत करती हैं। लेकिन आपको पता है कि बासा युक्त भोजन जो होता है काफ़ी स्वादिष्ट इंसानों को लगता है। जैसे बर्गर हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, ठीक है, इसमें पूड़ियाँ हो गई, ठीक है, तो इसको तो कहते हैं ना, सुनते ही मुंह में पानी आता है। तो ये तो हर लोग जो इसको पसंद करता है, चाहे वो काम करे चाहे ना करे, उनके लिए तो पूड़ियाँ होनी चाहिए अच्छी अच्छी तली तली, और इसके जो है बाहर के खाना पिज़्ज़ा बर्गर तो ये सब होना चाहिए। तो भाई जनरल सी बात है, जब आप इतना कड़ी मेहनत नहीं करते हो और इतना हैवी खाना खा रहे हो, चलिए हैवी खाना खा रहे हो तो कम अमाउंट में खाओ क्योंकि आप हैवी काम नहीं कर रहे हो। लेकिन ये तो नहीं है कि आप उसी को ही भोजन का अपना आहार बना लो पूरी तरह से। जब आप इसी को आहार बनाओगे तो मोटापा का भी शिकार होगे, इसमें कोई दो राय और कोई दो बात नहीं है। कहते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि बासा जो होती है, अगर हम एक बार खा लें तो हमें कई घंटों तक, कई मतलब समय तक हमें भूख नहीं लगती है। जैसे पूरी आप खा लो तो आपको भूख ही नहीं लगती है, और वही साधारण रोटी खा लो तो आपको 6 घंटे के बाद जो है भूख जरूर लग जाएगी, या 4 घंटे के बाद भूख लग जाएगी। तो इसका मतलब यही है कि फैट जो होता है हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता उसका जल्दी से, इस वजह से हमें काफ़ी टाइम तक एनर्जी देता रहता है। और मान लीजिए आप कोई मेहनत वाला कार्य नहीं कर रहे हो तो वो सारे के सारे एनर्जी जो होगा फैट के रूप में आपके शरीर में जम जाएगा, और जम जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, दौड़ के उसके पास जाओगे, दौड़ के एक्सरसाइज करोगे, दौड़ के वो करोगे। तो दोस्तों इससे सिर्फ आपका शरीर खराब होता है। कहते हैं शरीर के लिए एक्सरसाइज तो बहुत अच्छा बात होती है, लेकिन कहते हैं अनियमित एक्सरसाइज करने से भी शरीर पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। एक्सरसाइज उनके लिए अच्छा रहता है जो प्रतिदिन करते हैं, लेकिन उनके लिए अच्छा नहीं रहता जो महीने या साल में एक बार करते हैं। इससे आपका जो है एसिडिटी खत्म नहीं होगी, मोटापा दूर नहीं होगा। अगर एक्सरसाइज करते हो तो आपको कंटिन्यू करने की ज़रूरत होती है, और इसमें जो है अच्छा भागीदारी आपके चाहिए होता है। तो ये बड़ी बात हो जाती है यहाँ पर। कार्बोहाइड्रेट व वसाओं के शरीर में एकत्र होने से परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की भारी भरकम एवं वृहद आकार हो जाना स्थूल या मोटापा कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, मोटापा तो जो है हम अपनी गलतियों से ही होते हैं। लेकिन देखा जाए मोटापा के कारण क्या है, तो वही कारण है जो देखते हैं हम। देखा जाए तो वो यही है, अधिक भोजन करना, अपर्याप्त शरीर श्रम करना, यानी वही कड़ी मेहनत नहीं करना। हार्मोन का असंतुलन होने से भी जो है मोटापा आ जाती है। थायरॉक्सिन की कमी की वजह से जो होता है हार्मोन असंतुलित हो जाती है, या अपचाई गड़बड़ी की वजह से भी मोटापा आ जाती है। तो देखिए मोटापा को कई कारण तो अनुवांशिक हो सकते हैं, मैं इस पर कोई बात नहीं कहूँगा, लेकिन जो हमारे हाथ में है उसको तो हम रोक सकते हैं ना। कभी भी अगर आपको बर्गर खाने का मन है तो नहीं पूरा खाना है, आधा ही खा लीजिए। दोस्तों जितना मर्जी खाइए, खाना तो हम स्वाद के लिए ही खाते हैं ना। पेट तो भरता है जब आप रोटी सच्चे में खाते हो, जब रोटी आपको जाता है तब आपका पेट भरता है। ये चीज़ बर्गर जो ये सब होते हैं, चाहे ये फ्राई फूड सब होते हैं, वो सिर्फ हमें स्वाद के लिए हम खाते हैं, जो कि हमें नहीं भी खाना चाहिए। और ये इसलिए फैटी बढ़ाता है क्योंकि ये बार बार उसी तेल में तले होते हैं, और ये हमारे शरीर के सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अगर देखा जाए इसका हानिकारक प्रभाव, तो हानिकारक प्रभाव में ये भी कुछ कम नहीं है। कहते हैं कि स्थूल मोटापा व्यक्ति में उच्च मात्रा में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। अब कोलेस्ट्रॉल तो समझ ही गए होंगे ना कि आपका जो हार्ट धड़कन तेज होता है कोलेस्ट्रॉल की वजह से ही होता है। अब कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, आपको पता है कि आपके शरीर में बहुत सारे नस दौड़ रहे होते हैं, ठीक है, इस सारे जो होते हैं उसमें अगर फैट जम जाए तो जो है हार्ट को जो है पंपिंग करना मुश्किल हो जाता है। तो इससे क्या होता है, आपके धड़कनें तेज करने पड़ते हैं हार्ट को, और तभी जो है शरीर में जो है ब्लड जा सकता है। तो इस वजह से जो है कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जो कि रक्त धमनियों में जमा हो जाता है। यानी जो आपका फैट होता है ना, रक्त धमनियों में जमा हो जाता है। अगर मान लीजिए कि उस पाइप में जो है मिट्टी जम गया है, अगर मिट्टी जम गया है तो आपको पता है कि पानी जो है सुचारू रूप से आगे नहीं बढ़ेगा, और इसके लिए क्या होगा, आपको और प्रेशर देने की आवश्यकता पड़ेगी, तो मोटर और भी स्पीड चकेगा। तो ऐसा ही हमारे शरीर में होता है कि हार्ट जो है पंचिंग तो करता है, लेकिन इसको हर एक अंग में ब्लड को पहुंचाना भी जरूरी होता है। अगर किसी अंग में ब्लड नहीं जा रहा है तो इसका मतलब है वो अंग जो है पैरालाइज्ड हो जाता है। यानी आपको पता है लकवा, जिसको साधारण लैंग्वेज में हम कहते हैं पैरालाइज लकवा, तो लकवा मार जाएगा। इसलिए शरीर का ये काम होता है कि हर क्षेत्र में, हर एक अंग में ब्लड जाना चाहिए, और इसको ब्लड नहीं पहुंच पाता है क्योंकि आपके फैट जो होता है धमनियों में जम जाता है।
जो आप खाते हो फैटी, तो वो उससे क्या होता है, धमनियों में जम जाता है। इसकी वजह से हार्ट को बहुत तेज़ी से धड़कना पड़ता है, और जिसके वजह से जो है आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आती है, उच्च रक्तचाप हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है। तो ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, हमारे द्वारा पैदा किया गया खुद का बीमारी है। कहते हैं कि ये बीमारी कहाँ से आई? अरे भाई, कहाँ से क्या आई? आप लोगों के आलसी जीवन ने इस बीमारी को पैदा किया है। पहले के समय में प्रत्येक व्यक्ति जो था कड़ी मेहनत किया करता था। मैं एक बात हमेशा देखा हूँ, कोई मजदूर हो या कोई मेहनत करने वाला व्यक्ति हो, वो कभी भी कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से परेशान नहीं होता, कभी भी हाइपरटेंशन की बीमारी से परेशान नहीं होता, क्योंकि जितना वो भोजन करता है उतना अपना मजदूरी करके निकाल लेता है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आप मजदूरी करने ही चले जाओ। कहते हैं अगर इसका एक्सरसाइज अगर करना है तो वो डेली करते रहो, ठीक है। हो सकता है तो अपने गार्डनिंग खुद कर लो, ठीक है। हो सकता है तो आप क्या करो, सुबह सुबह दौड़ लगाओ। हो सकता है तो भोजन में जो अधिक मात्रा में फैटी चीज़ खाते हो उसको कम अमाउंट में खाओ, क्योंकि खाना तो भाई स्वाद के लिए है ना। स्वाद में अगर चबा के खाओगे तो वो भी आपके शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रहेगा। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। और यहाँ पर भी वही बात बताई गई है कि धमनियों की दीवारों का मोटा व कठोर हो जाता है, जो तो ब्लॉकिंग की वजह से कठोर और मोटा तो होगा ही होगा। जैसे धमनियाँ जो है कोरोनरी अटैक या मधुमेह के श्वसन संबंधी समस्या आ जाती है। और देखिए, डायबिटीज़ भी इसी प्रॉब्लम के कारण होता है, हार्ट अटैक भी इसी कारण होता है। हार्ट अटैक कारण तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जब धमनिया में जो है आपके जो फैट जम जाएगा तो हार्ट को बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और ये मेहनत उसका सफल नहीं होगा तो ये हार्ट अटैक का कारण बन जाएगा, यानी वो काम करना ही बंद कर देगा। देखते हो, अगर पानी अधिक प्रेशर से नहीं निकल रहा होता तो मोटर का या तो खराब हो जाता है या मोटर बंद हो जाता है। तो सेम यही कारण हमारा हार्ट का भी है। तो आप समझ सकते हो, इतना साधारण लैंग्वेज में शायद कहीं भी आपको समझने को ना मिले, ठीक है। तो समझ गए ना। और सबसे बड़ी बात तो आजकल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है दोस्तों। डायबिटीज़ भी इसी वजह से होता है। आप फैटी खाओगे, उसमें शुगर भी होता है, तो इससे क्या होगा, आपका डायबिटीज़ दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाएगा। तो इस वजह से जो है डायबिटीज़ सबसे अधिक घातक बीमारी है। और डायबिटीज़ के लिए मैंने पहले ही आपको कह चुका हूँ कि रफेज को जो है, रुक्षांश को अपने भोजन में शामिल करें। अगर जो व्यक्ति शामिल कर लेता है समय रहते, ना तो उसको डायबिटीज़ होगी, ना तो हाइपरटेंशन होगा, और बड़े बड़े डॉक्टर के पास सलाह मशवरा लेने की भी आवश्यकता नहीं होगी, और उसकी काउंसलिंग फीस भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो समझदार के लिए कहते हैं इशारा ही काफ़ी होता है। अब देखिए, यहाँ पर आ गया स्थूल रोकने के उपाय। देखिए, जो बात मैंने बोली है ना, बताई है आपको, सारी वही बात आपको देखने को मिलेगा। क्या उसके लिए व्यक्तियों के आहार के विषय में अनेक सावधानियां बरतनी चाहिए। जैसे पहला तो यही कि तला भोजन त्याग देना। दूसरा है कार्बोहाइड्रेट प्रचुर भोजन न करना, और संतृप्त वसाएं जैसे घी, वनस्पति हाइड्रोजन युक्त तेलों का प्रयोग न करें। इसके स्थान पर जो है असंतृप्त वसाएं जैसे तेल का जो है अल्प मात्रा में प्रयोग करें। जैसे बहुत से जो है सोयाबीन तेल सब होते हैं जो हमारे शरीर के सही रहता है। नियमित व्यायाम करना चाहिए, ये नहीं कि एक दिन कर लिया और 100 दिन छोड़ दिया। ऐसा व्यायाम करने से आपके शरीर पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अगर व्यायाम करना आप स्टार्ट करते हो तो उसको कंटिन्यू करते रहो, तो वही शरीर के लिए फ़ायदेमंद रहता है। उसके बाद मैंने आपको बताया भी था कि चांस के लिए हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन भी करना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। यदि हार्मोन के असंतुलन से पीड़ित हो तो चिकित्सा के राय ले। इसमें तो कहते हैं आपका हाथ नहीं है, क्योंकि कोई हार्मोन से अगर आपका है तो चिकित्सा की सलाह लेना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन हार्मोन भी कंट्रोल हो सकता है जब आप भोजन पर्याप्त मात्रा में खाओ, सभी कुछ खाओ, क्योंकि सारे चीज़ हमें हार्मोन उर्मोन जितने भी चीज़ें होती है, चाहे हार्मोन हो चाहे इंजाइम हो, सब के सब हमें जो है भोजन से ही प्राप्त होती है, और भोजन की मात्राओं से भी हमारे शरीर में बैलेंस बनता है। लेकिन कहते हैं ना, आज जो है व्यक्तियों का जो है स्वाद का जो बल्ब्स होते हैं ना, वो मानता ही नहीं है। कहते हैं जितना मर्जी बीमारी हो जाए, जितना मर्जी हम तकलीफ़ों से गुजर जाएं, हम जो चीज़ गलत रास्ते चले गए हैं उसको छोड़ना ही हमको नहीं आता है। जैसे कि आप सिगरेट का ही बात ले लो। कहते हैं सिगरेट इतना खतरनाक है, टीवी पे प्रचार आती है, आए दिन आपको न्यूज़ में देखने को मिलता है, हर जगह दिखने को मिलता है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, धड़ल्ले से जो है सिगरेट की धुआं जो है उड़ा रहे हैं, क्योंकि उनको तो हीरो बनना है। हीरो बन के ही आगे जीवन को जो है यापन करना है। आगे जो है लोहा के अत्यधिक सेवन का परिणाम। देखिए, लोह तत्व के अधिक सेवन करने से भी हमें कई तरह की बीमारियां हो जाती है। मैं कई बार आपको बताया हूं कि जो है सही मात्रा में, सही उचित मात्रा में भोजन ही ग्रहण करना सर्वदाचित उचित होता है। इसके परिणाम से विकृति में भारी मात्रा में लोह तत्व जमा हो जाता है। इसके कारण बहुत होते हैं, जैसे कब्ज, दस्त लग जाता है, हृदय दाह होती है, उबकाई या उल्टियाँ आने लग जाती है,
अति जठर हो जाते हैं, नेपी गैस्ट्रिक सूल हो जाता है। तो ये बहुत सारे बीमारियां जो होती है अधिक मात्रा में लोह तत्व शामिल करने से होती है। उसके पश्चात है विटामिनों के अत्यधिक सेवन का प्रभाव क्या पड़ेगा। इसका प्रभाव तो यही पड़ेगा कि अति विटामिनता जो होती है हाइपरो विटामिनोसिस के कारण बनेगा। यानी हाइपरो विटामिनोसिस जो होती है, कुछ व्यक्तियों में विटामिन अधिक मात्रा लेने की प्रवृत्ति होती है। जल में घुलनशील विटामिन जो होता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और सी होता है। अधिक मात्रा में ले जाने पर शरीर में कई हानि नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि ये मूत्र द्वारा शरीर से निकल जाते हैं। चलिए कुछ तो अच्छा है, ये कम से कम मूत्र से बाहर निकल जाता है। बासा में घुलनशील विटामिन अधिक मात्रा में ले जाने से शरीर के लिए जो विष हो जाता है। देखिए कई इंपॉर्टेंट बात आ गया ना, कि जो बासा में घुलनशील विटामिन होते हैं अगर वो आप लेते हो तो ये बाथरूम की तरह बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, ये आपके बॉडी में ही रहता है और ये विषैली फॉर्म में रहता है, जो आपको शरीर को बीमार करने के लिए पर्याप्त होता है और इसके कारण विशेष रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये रोग जो है बहुत काफ़ी खतरनाक भी होता है। शरीर में अधिक मात्रा में विटामिन की विषमता के कारण जो है उत्पन्न रोग को जो है अति विटामिनता ही कहते हैं। यानी अति विटामिनता के नाम दिया गया है। इसमें अगर आप देखोगे तो पहला तो यही है कि अति विटामिनता यानी ए, यानी हाइपर विटामिनोसिस ए यकृत में विटामिन ए का अधिक मात्रा में भंडारण विषैली होती है और इसकी वजह से क्या क्या परिणाम दिखता है, जैसे बालों का गिर जाना। देखिए कोई व्यक्ति का अगर बाल गिर रहा है, बाल झड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो जो है अति मात्रा में विटामिनता ले रहा है, इसी कारण जो है बाल झड़ने लग जाता है। लंबी अस्थि में दर्द और सूजन रहती है, यानी हड्डियों में जो है कंटिन्यू दर्द रहेगा, तो ये अति विटामिनता के कारण ही होता है। और कभी कभी मिचली आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो इसके वजह भी कारण यही है अति विटामिनता। और अनिंदापन आ जाती है, भूख न लगना, तो ये सारे के सारे जो होती है विटामिनोसिस ए के कारण ये होती है। अब हमारा जो है अति विटामिनता डी यानी हाइपरो विटामिन डी जो होती है, विटामिन डी की मात्रा जो अधिक मात्रा के कारण आंतों में कैल्शियम का अवशोषण बढ़ जाता है, जिसके निम्न परिणाम देखने को मिलता है। पहला परिणाम तो देखने को यही मिलेगा कि शरीर के कोमल ऊतक जैसे कि बुक्कक यानी किडनी हो गया, गुर्दे में कैल्शियम का जमाव, यानी किडनी में जो होता है कैल्शियम जम जाता है। और आपको पता है किडनी में कैल्शियम जमने का अर्थ क्या हुआ, कई तरह के बीमारी का सुलचारक बनना। उसके बाद है उनीदापन यानी ड्रोमनेसनेस, उबकाऊ, मिचली आने लग जाती है, भार में कमी भी हो जाती है। कहते हैं हम देखते हैं कि पोषक की अल्पता और अधिकता दोनों की शरीर के लिए हानिकारक सिद्ध होता है। किसी व्यक्ति के बाल झड़ रहे हो, किसी के वजन नहीं बढ़ रहा हो, तो इसका कारण भी यही सब पड़ता है। लेकिन व्यक्ति जो है समझता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि आप भी नहीं समझते हो कि जितना त्रिपाण सेंटर को शेयर करोगे, जितना आप इसको आगे फैलाओगे, उतना ये जो वीडियो बच्चों तक पहुंचेगा और ये बच्चे भी लाभान्वित होंगे। और लाभान्वित क्या, वो अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे, क्या स्वास्थ्य होती है, क्या होना चाहिए। तो ये ज्ञान कहीं और नहीं मिलेगा, सिर्फ त्रिपाण सेंटर में ही मिलेगा। तो सोचना नहीं है दोस्तों, विचार नहीं करना है, जितना हो सके इसको शेयर करना है। और शेयर करने के लिए आपको बहुत दूर नहीं जाना है, बहुत बड़ा कदम नहीं उठाना है, सिर्फ अपने उंगली जो है आप यूट्यूब पे शेयर का बटन दिख रहा है उस पर दबाना है और इसको जो है कॉपी करके व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है।